Hello students, in this video I'll explain to you the most two important points of chapter number 4, that is final accounts of cooperative society, of which point number 1, that is 4.4, is allocation of profit as per Maharashtra State Cooperative Societies Act, and after that I'll explain to you the important provisions of law as regard to certain items of balance sheet. And in my previous video, while explaining you the form N, I told you that at liability side, the point number 11 indicates that we have to show their previous year profit first, and then from that profit, we will deduct the appropriations of such a profit, and in the net balance, we will add the current year profit. And in that video, I asked you one question: what is that situation because of which the effects of appropriation of previous year profit are made in the current year balance sheet? What is that? What is the reason of it? Now you will get the answer of that question in this video. In this video only. Now here, when the profit and loss account and balance sheet are prepared, they are required to be approved by the members in the annual general meeting. The appropriation of profit as recommended by the managing committee also need to be approved in the annual general meeting. Since the annual general meeting is held only after finalizing the accounts, the effect of these appropriations are given in the accounts of next year. This is evident in item number 11 of the liability side. It shows the profit of the last year less appropriations and then added with the current year profit. Now I'll explain that entire paragraph one more time. See, what happens, it is the duty of the managing committee to prepare the financial statements, and they have to also close their books of accounts as on 31st March every year, and within the 3 months from the date at which they are supposed to close their books of account, that is 31st March, within the 3 months they should they should call annual general meeting, and in that annual general meeting they should get the approval of these financial statements from the members of the cooperative society. मतलब जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी वो कब होती है, विदिन द 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब 31st मार्च के बाद जो 3 महीने हैं, मतलब 13 जून तक आपको एजीएम लेना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को एजीएम लेना पड़ता है, और एजीएम में ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स, मतलब कौन से स्टेटमेंट्स, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और एट द सेम टाइम जो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होगा, प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन रिलेटेड जो रिकमेंडेशन है, मतलब प्रॉफिट में से इतना सर्टन अमाउंट इस फंड में जाएगा, इतना सर्टन अमाउंट उस फंड में जाएगा, इतना सर्टन अमाउंट किसी और पर्पस के लिए खर्च होंगे, वो जो रिकमेंडेशन है प्रॉफिट रिलेटेड, वो रिकमेंडेशन भी एनुअल जनरल मीटिंग में रखे जाते हैं। फिर एनुअल जनरल मीटिंग में जो मेंबर्स है, वो मेंबर्स क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी अप्रूव करते हैं और रिकमेंडेशंस को भी अप्रूव करते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है वो होती कब है, आफ्टर फाइनलाइजिंग द अकाउंट्स, मतलब 31st मार्च के बाद वो होगी। तो यहाँ पे होता क्या है, ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुके हैं और उसके बाद जाके एजीएम होने वाली है। तो एजीएम में जो भी रिकमेंडेशन किए गए हैं विथ रिगार्ड टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, वो रिकमेंडेशन जब तक अप्रूव नहीं होते बाय द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके इफेक्ट्स हम दे नहीं सकते। तो यहाँ पे होता क्या है, ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुके हैं, फिर बाद में जाके फिर वो रिकमेंडेशन अप्रूव हो गए। जैसे वो रिकमेंडेशन अप्रूव हो गए तो ऑलरेडी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं उसके अंदर तो चेंजेस हो नहीं सकते। तो होता क्या है, वो जो इफेक्ट्स है, मतलब वो जो एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट रिलेटेड जो रिकमेंडेशन है उसके जो इफेक्ट्स है वो होंगे कब, तो वो होते हैं नेक्स्ट ईयर बैलेंस शीट में होते हैं। मतलब चलो मान लो कि अपन यहाँ पे 19-20 का बैलेंस शीट बना लिया, और 19-20 के बैलेंस शीट उसका जो भी प्रॉफिट है उसके रिलेटेड एक 4-5 रिकमेंडेशन मैनेजिंग कमेटी ने दे दी है। अब 19-20 का ऑलरेडी बन चुका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर बाद में जाके रिकमेंडेशन अप्रूव कर दिए मेंबर्स ने। अब जैसे ही बैलेंस शीट बन चुका है, फिर बाद में जाके उसके अंदर तो चेंजेस नहीं हो सकते, उसके इफेक्ट्स तो इंसर्ट नहीं हो सकते उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो क्या करते हैं, अगले साल का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो भी जो 20-21 का होगा, उसके अंदर 19-20 के जो भी एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन रिलेटेड रिकमेंडेशन है उसके इफेक्ट रिकॉर्ड हो गए। इसी वजह से होता क्या है, जो प्रॉफिट होता है, मतलब जो बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड का 11 नंबर का आइटम है प्रॉफिट लॉस, वहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट दिखाते हैं ऑफ द लास्ट ईयर, फिर लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशन को लेस किया जाता है, फिर उसके बाद में जो भी नेट बैलेंस बचता है उसके अंदर करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड किया जाता है। सो दैट्स व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, why the effects of the previous year profit are mentioned or given, or the profit appropriation related effects are given in the current year balance sheet.
So now I will like to discuss with you the allocation of profit related few points. Number one is statutory reserve fund. When the society earns a profit, at least 25% of the net profit of each year need to be transferred to the reserve fund. Since this fund is required to be maintained statutorily, it is termed as a statutory fund. Such a reserve fund may be used in the business of the society or may be invested as per the directions of the state government. Now it is quite important. This fund is quite important, and since this fund is required to be maintained statutorily, it is termed as statutory fund. हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को यह फंड क्रिएट करना पड़ता है और उस फंड के अंदर हर एक सोसाइटी मतलब कौन सी सोसाइटी जिसने प्रॉफिट अर्न किया है, मतलब जो लॉ जिस सोसाइटी ने लॉस सफर किया है वो सोसाइटी ट्रांसफर नहीं करेगी, लेकिन हर कोई सोसाइटी जिसने प्रॉफिट कमाया है उस सोसाइटी को एटलीस्ट 25% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर नीड टू बी ट्रांसफर टू द रिजर्व फंड. And here such a reserve fund may be used in the business of the society or may be invested as per the direction of the state government. मतलब क्या है, हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टैट्यूटरी फंड मेंटेन करना ही पड़ता है, इसीलिए इसे स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड बोलते हैं. और हर एक जो सोसाइटी जिसने प्रॉफिट कमाया है उसे अपने प्रॉफिट का 25%, आई मीन टू से 1/4 ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना पड़ता है रिजर्व फंड के फंड में. फिर रिजर्व फंड का जो भी बैलेंस बनेगा, जो भी अमाउंट जाएगी रिजर्व फंड में, तो वो अमाउंट का सोसाइटी किस लिए यूज कर सकती है? इट कैन इन्वेस्ट दैट सम इन इट्स ओन बिजनेस और इट हैज टू इन्वेस्ट दैट मनी as per the direction of the state government. Okay, now section 61 is dividend. Now, no society shall pay a dividend to its members at a rate exceeding 15% except with the prior sanction of the state government. With the prior sanction of the state government. मतलब हर एक सोसाइटी को डिविडेंड अगर देना है तो एक ऐसे रेट से दे सकती है कि जो 15% से ज़्यादा ना हो, मतलब 15% से कम रेट से ही डिविडेंड देना पड़ता है. लेकिन कुछ कुछ सोसाइटी दे सकती है 15% से भी ज़्यादा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू टेक अ परमिशन from the state government. I mean to say such a society should take a permission or approval with respect to that, with respect to rate of dividend from the state government. Only after that it can pay a dividend at a rate exceeding 15%. Otherwise, no society shall pay a dividend to its members at a rate exceeding 15%. Now, next is dividend equalization fund. Now, a society may create a dividend equalization fund out of its net profit by crediting to it a sum not exceeding 2% of the paid up share capital. मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड नाम का एक फंड क्रिएट कर सकती है और उस फंड के अंदर वो नेट प्रॉफिट से एक सम कंट्रीब्यूट कर सकती है, मतलब नेट प्रॉफिट का ऐसा पार्ट कंट्रीब्यूट कर सकती है दैट इज नॉट एक्सीडिंग 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल. चलो मान लो कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल चलो मान लो 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपीज है, तो 1 लाख रुपीज का 2% होता है कितना? 2000 होता है. तो इस केस में वो कोऑपरेटिव सोसाइटी 2000 तक सम कंट्रीब्यूट कर सकती है इन डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकती. यहाँ पे क्या लिखा है? बाय क्रेडिटिंग टू इट अ सम नॉट एक्सीडिंग 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल. चलो मान लो पेड अप शेयर कैपिटल किसी और कोऑपरेटिव सोसाइटी का 4 लाख है, तो 4 लाख का 2% होता कितना है? 8000 होता है. तो ऐसी सोसाइटी 8000 रुपीज तक डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में पैसे ट्रांसफर कर सकती है, अदरवाइज इससे ज्यादा नहीं कर सकती. उससे कम कर सकती है लेकिन उससे ज्यादा कर नहीं सकती. Now next point is charitable purpose. It is also important. A registered society may, with the sanction of the registrar, contribute an amount not exceeding, मतलब इससे ज्यादा नहीं, not exceeding 10% of the net profits remaining after the transfer to the reserve fund or any charitable purpose as defined in Charitable Endowments Act 1990. मतलब चैरिटी कर सकती है मुझे कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने प्रॉफिट का एक सर्टेन पार्ट चैरिटी पर्पस के लिए मतलब अप्रोप्रिएट कर सकती है, लेकिन कितना कर सकती है? एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स रिमेनिंग आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ द रिजर्व फंड. चलो मान ले, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. चलो मान लो कि 100 रुपीज का नेट प्रॉफिट है, 100 रुपीज का नेट प्रॉफिट है, तो चैरिटेबल हो सकता है, चैरिटी कर सकती है एज पर दिस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट. यहाँ पे सवाल बनता है कि 10% ऑफ 100 कितना होता है? 10 रुपीज होता है. तो क्या फिर वो 10 रुपीज कर सकती है? चैरिटी नहीं कर सकती, 10 रुपीज नहीं कर सकती. यहाँ पे क्या लिखा है? द नेट प्रॉफिट्स रिमेनिंग आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ रिजर्व फंड. मतलब 100 रुपीज का नेट प्रॉफिट है, उससे सबसे पहले उसमें से
रिजर्व फंड का एप्रोप्रिएशन करो, रिजर्व फंड का एप्रोप्रिएशन का रेट कितना है 25% है, तो 100 का 25 हुआ कितना, 25 हुआ, तो 100 में से 25 सबसे पहले एप्रोप्रिएट करके रिजर्व फंड में ट्रांसफर हो गया, तो खाली कितना प्रॉफिट बचा है 75 रुपीज का बचा है, तो 75 का 10% कितना होता है 7.5 होता है, तो अप टू रुपीज 7.5, यहाँ पे क्या लिखा है एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 10%, मतलब 10% से ज्यादा नहीं, तो 10% ऑफ 75 कितना हुआ 7 रुपीज 50 पैसे, तो 7 रुपीज 50 पैसे तक इन्वेस्ट चैरिटी कर सकती है फॉर चैरिटेबल पर्पस, कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने प्रॉफिट का इस्तेमाल कर सकती है एज इट इज डिफाइंड इन चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट 1890। कोऑपरेटिव एजुकेशन फंड सेक्शन नंबर 68। According to section number 68, every society is required to contribute annually towards the education fund of the state federal society। मतलब इस सेक्शन के अकॉर्डिंग हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपने प्रॉफिट का कुछ ना कुछ पार्ट एजुकेशन फंड के लिए अप्रोप्रिएट करना पड़ता है, मतलब ट्रांसफर करना पड़ता है। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि एट व्हाट रेट्स सच अ कंट्रीब्यूशन इज टू बी मेड एट अ प्रिस्क्राइब्ड रेट, लेकिन वो रेट्स क्या है समझ लो आप। प्रेजेंटली अ प्राइमरी कंज्यूमर सोसाइटी हैज टू कंट्रीब्यूट 2 पैसे per rupees 100 of the working capital subject to maximum of rupees 1000। अब ये सेंटेंस क्वाइट इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे हमें रेट समझ में आ रहा है फॉर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पे बोला क्या गया है कि जो 2 पैसे देने हैं पर रुपीज 100 ऑफ द वर्किंग कैपिटल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज 1000। अभी यहाँ पे चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। चलो मान लो कि एक कंपनी है, एक नॉट कंपनी, कंपनी तो कंपनी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस भी नहीं कर रहे। कोऑपरेटिव सोसाइटी, चलो मान लो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसका वर्किंग कैपिटल है चलो मान लो कि 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपया 1 लाख रुपीज इसका वर्किंग कैपिटल है। अब सवाल ये बनता है कि अगर रेट क्या है ट्रांसफर का 2 पैसा पर रुपीज 100 है, तो यहाँ पे 1 लाख में कितने 100 के नोट रहेंगे, 1 लाख में कितने 100 के नोट रहेंगे, तो मैं 1 लाख को डिवाइड करता हूँ बाय 100 रुपीज, तो कितने नोट रहेंगे 1000 नोट रहेंगे। अब 1000 अगर नोट रहने वाले हैं उस फिगर के अंदर 1000 नोट रहने वाले हैं और यहाँ पे रेट क्या दिया है 2 पैसा पर रुपीज 100। अगर मैं ये 1000 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो मुझे यहाँ पे अमाउंट मिलती है 2000 पैसे। 2000 पैसे है ये। अब 2000 पैसे को अगर मुझे रुपए में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसे फिर से 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो रुपए में आ गया 20 रुपए। कितना आ गया ये 20 रुपए, क्यों 100 पैसे का 1 रुपया बनता है, 100 पैसे का 1 रुपया बनता है। मतलब ये सोसाइटी कितना कर सकती है कंट्रीब्यूट अप टू रुपीज 20 या फिर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज 1000। यहाँ पे देख लो आप क्या बोला है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज 1000। तो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया कि अगर एक कंज्यूमर सोसाइटी है उसका 1 लाख का वर्किंग कैपिटल है, तो 1 लाख के वर्किंग कैपिटल में 100 के नोट्स कितने आएंगे 1000 आएंगे बरोबर। तो 1000 नोट आएंगे, तो एक नोट के पीछे कितना कंट्रीब्यूट कर सकती है 2 पैसे, तो 1000 इंटू मैंने 2 कर दिया तो 2000 पैसे हो गए। अगर मैंने 2000 पैसे को 100 से डिवाइड किया तो मुझे रुपए में फिगर मिला वो है 20 रुपया। तो ये जो जिस सोसाइटी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कंज्यूमर सोसाइटी का, वो 20 रुपया या तो फिर 1000 रुपया तक इन्वेस्ट कर सकती है टू द इन कोऑपरेटिव एजुकेशन फंड, या तो 20 मुझे कम से कम 20 और मैक्सिमम कितना 1000 तक कर सकती है, 1000 से आगे नहीं कर सकती। अब नेक्स्ट है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इन केस ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी रेट्स क्या है ₹100 इन केस ऑफ दो सोसाइटीज हु हैव सफर्ड लॉस इन द प्रीवियस ईयर। अगर कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसने प्रीवियस ईयर में लॉस सफर किया है और उसे करंट ईयर में प्रॉफिट है, तो ऐसी सोसाइटी खाली 100 रुपया तक कर सकती है। कितना कर सकती है 100 रुपया कर सकती है टुवर्ड्स द कोऑपरेटिव एजुकेशन फंड। And for the credit cooperative society which have earned profits, the contribution is 10% of the working capital subject to maximum of rupees 500। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने प्रॉफिट कमाया है तो उसका जो भी वर्किंग कैपिटल है उसका 10% निकालो। चलो मान लो कि वर्किंग कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000 होता है। 10,000 या तो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज 500, तो यहाँ पे 10% जाता है 500 रुपीज कम है, तो मैक्सिमम कितना करना है 500 ही कर सकती है, तो 500 ही करना पड़ेगा। 10,000 10,000 ट्रांसफर नहीं कर सकते ऑफ नेट प्रॉफिट टू कोऑपरेटिव एजुकेशन फंड। तो मिनिमम यहाँ पे भी मिनिमम लेना है, जो भी 2 पैसा 100 रुपीज के हिसाब से एंड मिनिमम उसको कंपेयर करना है विथ रुपीज 1000, जो भी मिनिमम अमाउंट है वो उतना तक कर सकती है।
अब इसके बाद है important provisions of law as regard to certain items of balance sheet. Now this point is also important. The first point which I am going to explain in this video is the guarantee fund. Now what is it? A cooperative society may raise debenture capital or loan which is guaranteed by the state government. Therefore, a society may require to contribute a portion of its profits towards guarantee fund. मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन रेज कर सकती है या तो फिर डिवेंचर कैपिटल रेज कर सकती है। और अगर ये गारंटेड किया है स्टेट गवर्नमेंट ने, गारंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब अगर कल जाके अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब फेल होती है इन रिपेमेंट ऑफ बोरोड डिवेंचर कैपिटल एंड और लोन कैपिटल, जो भी लोन बोरो किया है, तो उस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करती है, वो अपने प्रॉफिट का कुछ ना कुछ पार्ट एक गारंटीड फंड नाम से एक फंड क्रिएट करती है और प्रॉफिट का कुछ ना कुछ पार्ट्स उस फंड के अंदर ट्रांसफर करती रहती है फॉर टू इंश्योर द टाइमली पेमेंट ऑफ सच ए डिबेंचर कैपिटल और लोन। तो एक गारंटीड फंड है। नेक्स्ट है डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। हमने डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड के बारे में मैंने अर्लियर वीडियो में बताया था आपको, एक बार फिर से आपको बताता हूँ डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड के बारे में। यहाँ पे देखो, और सोसाइटी में क्रिएट अ डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड आउट ऑफ इट्स नेट प्रॉफिट बाय क्रेडिटिंग टू इट सम नॉट एक्सीडिंग 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। और इस वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था और प्रीवियस में भी किया था। और यहाँ पे आप देख लो अभी उसका मीनिंग क्या है, एक्चुअली डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड बनता क्यों है, आपको समझ में आएगा अभी। The profits earned by the society will fluctuate from year to year. मतलब जो प्रॉफिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाती है हर ईयर, वो हर साल सेम नहीं होता, कुछ साल ज्यादा रहेगा कुछ साल कम रहेगा। To avoid the fluctuation in the rate of dividend due to the fluctuation in the profit, dividend equalization funds may be created. होता क्या है, अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो ज्यादा डिविडेंड कोऑपरेटिव सोसाइटी डिक्लेयर कर सकती है। अगर प्रॉफिट कम हुआ तो डिविडेंड का रेट जो होगा वो शायद कम होगा, तो वो जो डिविडेंड रेट है उसके अंदर फ्लक्चुएशन आता है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहती है कि जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो कांस्टेंट रहे, सिमिलर रहे ईयर टू ईयर, तो वो क्या करती है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड नाम का एक फंड क्रिएट करती है और उस फंड में क्या करती है, ट्रांसफर बट ऑब्वियस प्रॉफिट का पार्ट ही ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे देखो अब क्या है, दिस फंड इज क्रिएटेड टू इनेबल द सोसाइटी टू पे अ डिविडेंड at a certain rate every year. In the years when there is excess profit, an amount may be transferred to this fund and can be utilized for the payment of a dividend at a certain rate when the profit is low. As per law, a dividend is to be paid from the net profit of that year or the dividend equalization fund. अब मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ, होता क्या है कि जब प्रॉफिट्स में फ्लक्चुएशन होते हैं एवरी ईयर, तो डिविडेंड का रेट भी रहेगा, उसमें भी फ्लक्चुएशन रहेंगे। तो तो फिर डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड क्यों बनाती है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंश्योर करना होता है कि हर एक साल जो डिविडेंड का रेट रहेगा वो कांस्टेंट समवॉट सिमिलर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसके लिए वो क्या करती है, जिस ईयर में कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्यादा प्रॉफिट हुआ है उस ईयर में थोड़ा सा ज्यादा पैसा डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में ट्रांसफर करती है, और जिस साल प्रॉफिट कम है तो उस साल डिविडेंड देने के लिए ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड का वो इस्तेमाल करती है और डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड से अमाउंट अप्रोप्रिएट करके डिविडेंड डिक्लेयर करती है। हुँ? और बाय लॉ डिविडेंड कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो देना है वो किस अमाउंट से देना है, नेट प्रॉफिट से देना है ऑफ दैट ईयर, और द डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड का इस्तेमाल कर सकती है फॉर द पेमेंट ऑफ अ डिविडेंड। और उसके बाद हम देखेंगे अभी इन्वेस्टमेंट्स ऑफ फंड। जो भी फंड्स है, स्टैट्यूटरी फंड है या फिर फंड है, उसका उसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ-कहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी कर सकती है। नाउ दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू। सेक्शन 70 प्रोवाइड्स दैट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन इन्वेस्ट और डिपॉजिट इट्स फंड इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। कहाँ-कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकती है, अ सेंट्रल बैंक और द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। जो स्टेट गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड कोऑपरेटिव बैंक है, वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है, फिर सेंट्रल बैंक में कर सकती है। इन एनी ऑफ द सिक्योरिटी स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट। जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है उसका जो सेक्शन 20 है, वहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटीज स्पेसिफाई की गई है। वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना फंड इन्वेस्ट कर सकती है इन द शेयर्स और सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी विद लिमिटेड लाइबिलिटी। अगर कोई और कोऑपरेटिव सोसाइटी है और अगर उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो उसके शेयर्स और सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो एनी अदर कोऑपरेटिव बैंक और बैंकिंग कंपनी अप्रूव्ड फॉर दिस पर्पस बाय द रजिस्ट्रार। अगर रजिस्ट्रार ने कोई ऐसी कोई बाकी की बैंक भी नोटिफाई करके रखी है, फिर अदर बैंकिंग कंपनी भी नोटिफाई करके रखी है फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज फंड, तो ऐसे बैंक में कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट इज एनी अदर मोड परमिटेड बाय द रूल्स और स्पेशल ऑर्डर बाय द स्टेट गवर्नमेंट।
तो बाकी के भी हैं, अगर उस स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रूल स्पेसिफाई करके अगर कोई ऑप्शंस दिए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को इन्वेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी पैसे इन्वेस्ट कर सकती है। अब उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है शेयर कैपिटल रिडेम्पशन फंड। नाउ दिस फंड इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या होता है अच्छे से समझ लो। इन सर्टेन कोऑपरेटिव सोसाइटीज द गवर्नमेंट एक्वायर्स सम शेयर्स ऑफ द सोसाइटी and thus the government becomes a shareholder of the society. Now these shares are acquired by the government are to be returned after some period in lump sum or installments. For such a redemption of share capital, the cooperative society will have to create a share capital redemption fund. This share capital redemption fund will be shown on the liability side of the balance sheet till the shares held by the government are redeemed. After the redemption of share capital, the share capital redemption fund will be closed by transferring its balance to a reserve fund. आप समझ लो अच्छे से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल रिडम्पशन फंड। यहाँ पे नाम में ही दिया है शेयर कैपिटल रिडम्पशन। यहाँ पे होता क्या है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, अगर उसके शेयर्स स्टेट गवर्नमेंट ने एक्वायर किए हैं, तो इन दैट सिचुएशन क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट बिकम्स अ शेयर होल्डर ऑफ द सोसाइटी। और ऐसे जो शेयर्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक्वायर किए, वो स्टेट गवर्नमेंट को वापस करने पड़ते हैं। मतलब जो भी पैसा स्टेट गवर्नमेंट ने उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगाया है बाय परचेसिंग द बाय हैविंग द शेयर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो सारे के सारे शेयर्स कुछ टाइम के बाद रिडीम होते हैं या फिर रिटर्न करने पड़ते हैं। तो रिटर्न कैसे हो गए, रिडीम कैसे हो गए, आइदर इन लम सम हो गए और इंस्टॉलमेंट में हो गए। हो गए, चलो मान लो कि 10,000 रुपए के शेयर्स एक स्टेट गवर्नमेंट ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के परचेस किए। तो आगे जाके ये जो 10,000 जो मिला है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को 10,000 वो स्टेट गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा। आइदर इन लम सम करना पड़ेगा या फिर इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा। तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी करती क्या है, वो एक फंड क्रिएट करती है, उसका नाम होता है शेयर कैपिटल रिडेम्पशन फंड। और ये शेयर कैपिटल रिडेम्पशन फंड बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखाई देगा, लायबिलिटी साइड में दिखाई देता है। और वो जब तक लायबिलिटी साइड में दिखाई देगा, जब तक जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है इन द शेयर्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जब तक वो पैसा रिटर्न नहीं होता स्टेट गवर्नमेंट को, तब तक वो फंड लायबिलिटी साइड पे दिखेगा बैलेंस शीट के। और जिस दिन सारे के सारे शेयर्स रिडीम कर लिए और या फिर रिटर्न कर लिए टू द गवर्नमेंट, मतलब जितना भी पैसा आया था वो वापस कर दिया स्टेट गवर्नमेंट को, उस दिन पे ये फंड क्लोज होगा, ये फंड क्लोज क्लोज कर दिया जाएगा। तो कैसे क्लोज करेगा, अब चलो मान लो कि 10,000 का शेयर्स स्टेट गवर्नमेंट ने खरीदा है और एक शेयर कैपिटल रिडेम्पशन फंड नाम का एक फंड कोऑपरेटिव सोसाइटी ने क्रिएट किया है। और हर साल उसमें पैसे डाल डाल के वहाँ पे चलो मान लो कि आप वो फंड हो गया 12,000 का, मान लो वो फंड हो गया 12,000 का। और एक ऐसी डेट आ गई जिस डेट के ऊपर सारे के सारे पैसे अब रिटर्न करने हैं, मतलब जो भी शेयर्स स्टेट गवर्नमेंट ने खरीदे थे वो सारे के सारे पैसे अब स्टेट गवर्नमेंट को रिटर्न करने हैं। तो 12,000 में से 10,000 स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई भी शेयर नहीं है, क्योंकि जितना पैसा उन्होंने शेयर्स में लगाया था उतना सारा का सारा पैसा उनको वापस मिल गया है। तो इस सिचुएशन में होगा क्या, तो 12,000 में से 10,000 रुपए जाएगा गवर्नमेंट को, और जो 2,000 रुपए बचा है तो वो होगा ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, और शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। So this is what share capital redemption fund. Now the next is writing of bad debts. Now this point is also quite important. Writing of bad debts. Now see, rule number 49 provides that all loans, including interest and recovery charges, which are found irrecoverable and are certified as a bad debts by the auditor, can be written off against the reserve for bad debts, and the balance bad debts will be debited to profit loss account or may be written off against the reserve fund. Any debt considered bad debt, if so approved by the registrar, to written off by general meeting in the following order against. सबसे पहले the bad debt fund or any other fund created out of profits for writing of bad debts but not earmarked for any other specific purpose, and the reserve fund created as per law. अब ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपका एडजस्टमेंट, ये पॉइंट आपको समझ में ही आना चाहिए क्योंकि इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट्स प्रॉब्लम के अंदर आते हैं। और आपको उन एडजस्टमेंट्स को इस थ्योरी के हिसाब से ही उसकी आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है। तो सबसे पहले समझ लो कि बैड डेट्स किसे कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ विद रेफरेंस टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पे क्या दिया, रूल नंबर 49 क्या कहता है, ऑल लोन्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड रिकवरी चार्जेस विच आर फाउंड इरिकवरेबल एंड आर सर्टिफाइड एज बैड डेट्स बाय द ऑडिटर कैन बी रिटर्न ऑफ। मतलब जब ऑडिटर कहता है क्योंकि और मतलब ऐसे सारे लोन्स, उसका अनपेड इंटरेस्ट मतलब अनरिसीव्ड इंटरेस्ट और उसके भी जितने रिकवरी चार्जेस है, जब ये सारे मिला के जब ऐसा समझ में आता है कि अब रिकवर नहीं होने वाला,
और वो उसे ऑडिटर सर्टिफाई करता है एज अ बैड डेट, ऑडिटर क्या करता है, सर्टिफाई करता है बैड डेट, तब उस सिचुएशन में सबसे पहले बैड डेट्स को हमें राइट ऑफ करना है, सबसे पहले बैड डेट्स को हमें राइट ऑफ करना है अगेंस्ट द रिजर्व फॉर बैड डेट्स, अगेंस्ट द रिजर्व फॉर बैड डेट्स के अगेंस्ट राइट ऑफ करना है। अब होता क्या है, नॉर्मली जब हम बैड डेट्स की एंट्री करते हैं तो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे बैड डेट्स को दिखाते हैं, राइट? कहाँ पे दिखाते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे हम बैड डेट्स को दिखाते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा, सबसे पहले जो भी बैड डेट्स है आपके, आपको वो अगेंस्ट दिखाना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट दिखाना पड़ेगा? रिजर्व फॉर बैड डेट्स। रिजर्व फॉर बैड डेट्स जो होते हैं ना, उसका एक फंड क्रिएट किया जाता है और उस फंड के अंदर ही आपको, मतलब वो लाइबिलिटी साइड में जो लाइबिलिटी नंबर 2 है, रिजर्व फंड एंड अदर फंड, वहाँ पे आपको दिखेगा रिजर्व फॉर बैड डेट्स, और उस रिजर्व फॉर बैड डेट्स में से आपको बैड डेट को एडजस्ट करना है, बैड डेट को एडजस्ट करना है, और जो बैलेंस बैड डेट्स है, जो बैलेंस बैड डेट्स है विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट और मे बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द रिजर्व फंड। आप जान लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। चलो, एक प्रॉब्लम के अंदर ऐसा दिया है कि 2000 रुपए के बैड डेट्स राइट ऑफ करने, कितने के करने हैं? 2000 के बैड डेट्स राइट ऑफ करने हैं। और उसी प्रॉब्लम के अंदर हमें दिखाई देता है रिजर्व, कौन सा रिजर्व? रिजर्व फॉर बैड डेट्स, और उसका अमाउंट मान लो कि 5000 रुपए। तो 5000 में से हम 2000 को माइनस करेंगे और वहां पे खाली रिजर्व फॉर बैड डेट्स दिखेगा 3000 रुपए का, 3000 रुपए का बैलेंस दिखेगा। अब मैं आपको सेकंड एग्जांपल देता हूँ। चलो मान लो कि 2000 के बैड डेट्स राइट ऑफ करने, लेकिन जो रिजर्व फॉर बैड डेट का अमाउंट है, चलो मान लो खाली 1000 रुपए है। कितना रुपए है? 1000 है। तो जो बैड डेट का प्रोविजन जो 2000 का करना है, तो या फिर राइट ऑफ करना है 2000 का बैड डेट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2000 में से 1000 एडजस्ट किया जाएगा रिजर्व फॉर बैड डेट्स के सामने से, मतलब रिजर्व फॉर बैड डेट से 1000 माइनस होगा और बाकी का एक बचा 1000 डेबिट होगा टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। कहाँ पे किया जाएगा डेबिट? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में किया जाएगा, या फिर उसे एडजस्ट किया जाएगा अगेंस्ट द रिजर्व फंड, अगेंस्ट द रिजर्व फंड। तो इन शॉर्ट आपको ध्यान में रखना है कि जब भी बैड डेट्स प्रॉब्लम के अंदर आए, सबसे पहले बैड डेट्स को या फिर उसकी प्रोविजन को आपको एडजस्ट करना है अगेंस्ट अगेंस्ट द रिजर्व फॉर बैड डेट्स, अगेंस्ट द रिजर्व फॉर बैड डेट्स और एनी अदर फंड क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, एनी अदर फंड क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर राइटिंग ऑफ बैड डेट। उसके आगे भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई फंड क्रिएट किया गया है अगेंस्ट द प्रॉफिट, अगर एंड उस फंड का कोई पर्पस कोई और है, जैसे कि ये शेयर कैपिटल रिडम्पशन फंड, इसका पर्पस क्या है कि गवर्नमेंट को आगे जाके जितना भी पैसा उन्होंने शेयर्स में लगाया है वो वापस करना है, इसके लिए ये फंड का यूज किया जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में इस फंड के आगे आप बैड डेट्स को राइट ऑफ नहीं कर सकते, बैड डेट को राइट ऑफ नहीं कर सकते। तो यही यही यहाँ पे लिखा है, द बैड डेट fund or any other fund created out of profit for writing of bad debts but not earmarked for any other specific purpose। और सेकेंड है रिजर्व फंड क्रिएटेड एज पर लॉ। तो रिजर्व फंड के आगे भी आप बैड डेट्स को ये कर सकते हो, मतलब राइट ऑफ कर सकते हो अगेंस्ट द रिजर्व फंड, वहां से भी आप बैड डेट्स को राइट ऑफ कर सकते हो। लेकिन मैं मेरी मानो तो मैं आपको फिर से एक बार बोलता हूँ, सिचुएशन 3 ध्यान में रखो। अगर प्रॉब्लम के अंदर रिजर्व फॉर बैड डेट है ही नहीं, प्रॉब्लम के अंदर रिजर्व फॉर बैड डेट है ही नहीं है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? सिंपल है, डायरेक्टली जो बैड डेट का अमाउंट है ना, वो पूरा का पूरा अमाउंट आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे दिखा दो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा दो। वहाँ पे मेरे हिसाब से आइटम नंबर है E13 है, वो मेरे हिसाब से बैड डेट का ही है, तो वहाँ पे आप उसको राइट ऑफ कर सकते हो। वहाँ से आप इसको राइट ऑफ कर सकते हो। या तो फिर सिचुएशन नंबर 2 है, रिजर्व फॉर बैड डेट प्रॉब्लम के अंदर दिया है और बैड डेट का प्रोविजन है, और या फिर बैड डेट का अमाउंट प्रॉब्लम के अंदर दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, जो बैड डेट का अमाउंट है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाना नहीं है, मतलब उसे डायरेक्टली बैलेंस शीट में बैड डेट के सामने से माइनस करना है अगेंस्ट बैड डेट, जो रिजर्व फंड जो रिजर्व क्रिएट किया गया है फॉर बैड डेट, वहां से उसे एडजस्ट करना है। और सिचुएशन नंबर 3 ध्यान में रख लो। चलो, बैड डेट का बैलेंस मान लो 2000 है और रिजर्व फॉर बैड डेट का बैलेंस 3000 रुपए, तो ये चलो एक 1500 रुपए मान लो, 1500 है। तो आप क्या कर सकते हो, बैड डेट का 2000 है तो खाली 1500 आप एडजस्ट कर सकते हो अगेंस्ट द रिजर्व फॉर बैड डेट्स, और जो बाकी 500 रुपए है वो आपको दिखाना पड़ेगा इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपका डेबिट होगा 500 रुपए से, या तो फिर वो 500 रुपए आप एडजस्ट करो अगेंस्ट रिजर्व फंड। तो ये सिचुएशन है, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको करनी है विथ रिस्पेक्ट टू राइटिंग ऑफ बैड डेट्स। अब इसके बाद है बिल्डिंग फंड। तो जो ये बिल्डिंग फंड है ना, ये किसके लिए क्रिएट किया जाता है? फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेस ऑफ बिल्डिंग फॉर द बिजनेस ऑफ द सोसाइटी, इसके लिए फंड क्रिएट होता है। दिस पार्ट इज ओवर। थैंक यू।